Hi friends, this is again PH 3501 Unit 1 Solid State Physics lecture by Dr. M.R. Gadvi. In this lecture, we will be focusing on two agenda. One which is the present slide, which gives us the information about the relation between the density of a crystal material and the lattice constant in a cubic lattice. So, this issue is only restricted for the cubical crystals. Okay. Now, as we had discussed three varieties of cubic Bravais lattice, that is simple cube closed peg, body centered closed peg and the face centered closed peg. In addition to that, we had also touched the issue of hexagonal closed peg. One more corrections, by chance you are not able to understand what is the contribution of atomic packing fraction of hexagonal closed peg, how they having a 6 number of atoms. I am adding a one page information on Moodle. So, please revisit that single page. The title is about the hexagonal atomic packing fractions. So, this page will only give you the input how 6 atoms are contributing into the hexagonal closed peg. Okay. Okay, with the present slide, it is a relation between the density and the cubic crystal lattice. So, here we are talking about the consideration of a crystal lattice. As we are knowing, it is a B and C all are equal. So, in general it is written as a lattice constant as a. Now, they said that let the number of atoms per unit cell will be n. सो माने कि एक यूनिट सेल में n नंबर जितने एटम्स हैं एंड रो इज़ द डेंसिटी ऑफ योर चोजन क्रिस्टल मटेरियल. सो इट कुड बी एनी मटेरियल, लेट अस से कॉपर और द iron. So, density are different. So, that way if the question will be asked to you as a type of a numerical one, so out of this particular parameters only one will be missing and rest of them are given to you and you have to find it out the unknown one. Well, out of this is constant. Density for chosen material is also constant. Molecular mass is also constant. When you are choosing a one particular material, that is a density, their mass is also constant. Atomic concentration will be given to you, whether it is a simple cube, body centered cube or this one. So, that gives the atomic concentration. On that basis you can find it out the lattice parameters, or vice versa. If you are giving a lattice parameter, you can dig it out the value how many number of atom concentration is there. Okay, so again come to the point. So, the atomic weight of a material is a Ma. So, it is a mass of a atom. So, Ma. So, let Na is a Avogadro number. So, we are knowing that if we are taken a molecular mass of a 1 gram mole, then naturally the available number of atoms will be equivalent of a Avogadro number. With this logic, if I will divided the mass of atoms per its density. So, what is density? It is a mass per unit volume. So, basically Ma, that is mass of atoms, divided by the chosen crystal material density, that gives us the volume of that particular chosen crystal material, and therefore it is written here m cube. So, Ma upon rho, that unit having a meter cube of a material, will contain Avogadro number atoms. I hope this line is very much clear. फिर से मैं बताना चाहूँगा कि Ma, that is a mass of atoms, what the material you have chosen. Rho is the density of a material, what the material you have chosen, and the ratio of it, that is mass divided by density. Density is again mass per unit volume. So, denominator of denominator will become a numerator, and this numerator and denominator get cancelled. So, Ma upon Ma divided by V. So, ultimately it is a meter cube. So, let us say assume that in a given volume of a material, the available number of atoms are
equivalence of Na. That means it's about to be that volume contains Na number of atoms. Hence, if n atoms in a unit cell is already occupied, then a volume occupied that would be given by the volume what you have chosen for a Na atom. So you divide by the volume divided by Na, so Ma rho divided by Na, that is given a volume associated to an atom multiplied by available number of atoms, so that is multiplied by n. Or with other logic, फिर से बताऊंगा, Ma upon rho, that is a meter cube, so that is the available number of atoms is equivalent of Na. So if this number Ma upon rho is divided by Na, so that is given a volume associated to a single atom. Am I right? And thereafter you multiplied by with the n number of atoms which is available in the unit cell, so you are multiplying Ma upon rho Na into n. Am I clear? So this will give you the available number of atoms in a given unit cell. But now the another idea is you can having also proportional equation. So I have wrote here, let us say available number of atoms is Na, and you required occupied volume is equivalent to Ma upon rho. So if there is a n number of atoms, यहाँ पे एवोगेड्रो नंबर जितने एटम्स हैं और यहाँ पे स्मॉल एन स्मॉल एन इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ यूनिट सेल. सो एन ए के लिए Ma अपॉन रो जितने वॉल्यूम ऑक्यूपाइड चाहिए, तो स्मॉल एन के लिए कितना चाहिए. सो यू दिस विल गिव यू एग्जैक्टली this relation, and that is equivalent of a unit cell. Unit cell is equal to A cube. So I am writing here A cube. Okay, so with this particular equation you may have a freedom to find it out the value of A from the value of a given number of atoms associated to unit cell, or vice versa. Or sometime let us say I can ask you by giving you AQ, by giving you A, N and Ma, you can find it out the density as well. So in nutshell, I think molecular of atom mass is always given, Na is constant, so I think A, rho and small n, ये तीन में से आपको कोई दो चीज़ दी गई होगी, एंड यू हैव टू फाइंड इट आउट द नेक्स्ट वन. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक is about something new that is related to the Miller indices. Now Miller, the name of the plane has given to honored with this mathematician who has given the idea about the concept of the Miller planes and the Miller directions in a crystallographical axis. Okay, so let's begin with this. So if you are writing anything in a simple parenthesis with a separation character comma, so that is referred as a coordinate of this particular geometry. So it's a two-dimensional system, two-dimensional plane x and y, and let us say 1 1 coordinate. So 1 comma 1 in a normal parenthesis you are going to write it out, correct? Then this will be 2 comma 2, this is 3 comma 3 and so on, and if I will join them all together it will be reaching to the point A. So I am showing a direction with this pointer. Similarly this is a 3 comma 1, so this is a 3, so this is x coordinate, 1 is a y coordinate, so it's a 3 comma 1, and this will give me the B directions. So in a crystal geometry, for a direction of OA 1 1 and for OB it is 3 1, but in a 3 dimensions the directions are described by the coordinates of the first whole number points, and that is x, y and z. Generally all authors are accepted the notations like a square brackets used to indicate the directions. Few directions are shown below. So this is OA, look at here, this is a 3 dimension, this is a 2-dimensional setup, this is a 3-dimensional setup. OA is the xy plane, so I am just resemble this one, this is x plane, this is y plane. X I am choosing here,
y I am choosing here. So xy plane is the bottom face, correct? जहाँ पे ये bottom बन रहा है ये क्यूब का, that bottom face is this one. 0 to a, that direction is 0 to a is the direction with the pointed arrow a. अगर ये a की कोऑर्डिनेट देखो तो आप क्या होगे 1 1. Am I right? And what is the availability of the z coordinate? It is absent because it's just in xy plane. So in such case the direction in a crystallographical discussion, it is written as square bracket rather than a simple bracket. Now you will be selecting a square bracket 1 1 0. Also note that in a crystallographical axis, generally in general, it's not a compulsion, but more or less each and every books you will find it out, it's not separated by comma. Perhaps that is also giving an indication कि अगर कमा से separated coordinates नहीं है तो आपको समझना है कि this information is related to the crystallographical axis. अगर कमा से related है तो it may be a general graphical information or may be a normal coordinate system, that is Cartesian coordinate system. So x, y, z वो जनरली हम लिखते हैं जैसे कि यहाँ पे आपको पता है, तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्सेप्टेड है. तो हाउ आई कैन सेपरेट द कोऑर्डिनेट सिस्टम विथ रेफरेंस टू डायरेक्शंस? सो स्क्वायर ब्रैकेट लेना है, कोऑर्डिनेट्स को कॉमा से सेपरेट नहीं करना है. अगर जो जिस तरह से भी आप लिखो वो गिनी जाएगी डायरेक्शन in crystallography. So OA is this one. Let us say OB which is parallel to y. Can you see here OB is a parallel to y. तो y अगर parallel है तो उसमें सिर्फ y के कोऑर्डिनेट हैं, कोई x भी एब्सेंट है, z भी एब्सेंट है, तो वो कितना होना चाहिए 0 1 0 होना चाहिए. देखिए OB is 0 1 0. OC, C is a body diagonal, ये बॉटम कॉर्नर, ये फ्रंट कॉर्नर, ये बॉटम रियर कॉर्नर, ये बॉटम फ्रंट कॉर्नर, ये ओरिजिन, ये सी. सी की जगह अगर कोऑर्डिनेट देखो तो क्या होंगे 1, एक्स भी 1 होगा, वाई भी 1 होगा और जेड भी 1 होगा. जेड यहाँ से 1, वाई यहाँ से 1 और एक्स यहाँ से 1. सो दिस इज एक्स 1 1 1. सो ओ सी शुड बी 1 1 1. ओ डी, डी अगर आप देखो तो वो कौन से प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में पड़ा है, राइट. कहाँ पे है मुझे अंदाज से तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन ये थोड़ा ऊपर है, राइट. सो अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 एंड सो ऑन. सो ओ डी इट इज़ रिटन लेट अस से 1. सो एक्स वुड बी 1, वाई इज़ एब्सेंट, सो वाई इज़ 0 एंड सेकेंड वन इज़ अ 2. सो यहाँ से थोड़ा ऊपर z, सो z इज़ हायर देन द 1. यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे 2 लिखा है, वो क्यों, वो we will see just in 1 or 2 minutes. So OE, OE is 1 1 2. Where is OE? OE, OE is just parallel to the C directions. तो जैसे ही ये एक्सिस पे, तो यहाँ पे z कोऑर्डिनेट भी कुछ है, b पे कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट 1 1 है, लेकिन z कोऑर्डिनेट थोड़े, ये d की पैरेलली e है तो उसका भी मैंने 2 कोऑर्डिनेट रखा है. तो ये क्वेश्चन अगर यहाँ पे ये हो रहा है तो दैट इज़ वेरी क्लियर कि अगर फुल लेंथ अगर यहाँ पे यूज़ हो रहा है, फुल लेंथ ऑफ द ज्योमेट्री अगर यूज़ हो रही है तो ये यूनिट सेल है, तो इसकी कोऑर्डिनेट 1 होनी चाहिए. माने z अगर यहाँ तक जा रहा है, राइट, सो इट शुड बी, जैसे कि c के लिए आप देखो तो z की कोऑर्डिनेट यहाँ तक आई, तो दिस इज़ 1, सो इट शुड बी 1. लेकिन इससे अगर कम आ रही है z की कोऑर्डिनेट, लेट अस से इन केस ऑफ e और इन केस ऑफ d, इन बोथ द e एंड d केस z कोऑर्डिनेट्स इज़ नॉट फुल बट इट इज़ लिटिल बिट लेस. सो यहाँ पे 2, तो क्वेश्चन ये हो रहा है कि 2 कैसे आए, उसके लिए आगे की प्रोसेस देखते हैं. सो टू अंडरस्टैंड द मिलर इंडाइसिस, लेट अस try to understand how it is working and how it is established, and slowly we will digest that how 2 will appear over there. So crystal lattice may be regarded made up upon an aggregate of a set of parallel equidistant planes passing through the lattice points, which are known as the lattice points. For given lattice, lattice planes can be chosen in a different ways as shown in this figure. So Miller has evolved this method to designate
a set of parallel planes in a crystals by 3 numbers, and that is H, K and L. Remember, the H, K and L is written in a small parenthesis, a normal parenthesis, and again it is not separated by a comma, so you have a chance to distinguish from the normal Cartesian coordinate bracket and the Miller bracket. Okay, and this is known as a Miller indices. जैसे कि एक्स वाई जेड है, उसको कार्टेशियन इंडाइसिस भी आप बोल सकते हो इफ़ इट इज सेपरेटेड बाय एक्स वाई जेड कमा। तो कार्टेशियन सिस्टम से मिलर सिस्टम तक हम कैसे पहुंचेंगे वो देखते हैं। सो डिटरमाइन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे कि फिगर 4.27, इसके पीछे वाली नेक्स्ट स्लाइड में फिगर आप देखोगे एक नॉर्मल ट्राइंगल है। ऐसा एक ट्राइंगल है जो तीनों एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को 2 पे कर रहा है, और ए इज़ अ लेटिस कांस्टेंट ऑन अ एक्स एक्सिस, राइट, बी इज़ अ लेटिस कांस्टेंट ऑन अ वाई एक्सिस, एंड सी इज़ अ लेटिस कांस्टेंट ऑन अ जेड एक्सिस। अगर वेक्टर की टर्मिनोलॉजी में बताऊं तो ए एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, बी लेटिस पैरामीटर है वो y डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, और c है वो z डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। उसको कुछ न कुछ वेक्टर कंपोनेंट से मैंने मल्टीप्लाई किया। माने a लेटिस यूनिट वेक्टर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, b लेटिस यूनिट वेक्टर को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, और c यूनिट वेक्टर को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया। एंड जनरली 1 वी नेवर शो इट टू द एनी पर्टिकुलर सेट। सो अगर मैं ये तीनों वेक्टर कंपोनेंट को P, Q और R से डिफाइन करूँ, सो P इज इक्वल टू 2 हो गया, Q इज इक्वल टू 3 हो गया, और R इज इक्वल टू 1 हो गया। लेट्स सी द फिगर सो इट बिकम मोर क्लियर। सो आई हैविंग अ ट्राइंगुलर प्लेन in a xyz coordinate system. Remember, this is a pure Cartesian coordinate system. So on it is a is a unit vector or a lattice constant, so periodic arrangement of so many blocks on the x-axis, so many blocks on the y-axis, so many blocks on the z-axis, and periodic arrangement on a lattice or the periodic arrangement on a lattice geometry, which is nothing but the crystalline system. We have seen very first lecture कि lattice plus basis is equal to crystal. So crystal माने lattice. So lattice पे lattice is a mathematical concept, a mathematical geometry which help us to assume, to visualize the position and availability of atoms. तो यहाँ पे lattice वो एक mathematical geometry है, और basis माने groups of atom और group of molecules we are looking in a periodically arrangement, माने periodically पूरी स्पेस में, पूरी लेटिस स्पेस में वो हमें पीरियोडिकली रिपीट होती हुई दिखाई देगी। वी आर फाइंडिंग दैम अ पीरियोडिक रिपीटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप और अ ब्लॉक ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल्स, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नॉन एज अ क्रिस्टल। तो यहाँ पे जो मेरी ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्री कार्टेशियन सिस्टम में एक्स एक्सिस को 2 पे को कट कर रही है। मान लो कि मेरा यूनिट सेल ही ऐसा है कि जिसकी एज है वो 2 पे कट कर रही है, वाई एक्सिस पे 3 पे कट कर रही है, और जेड एक्सिस पे 1 पे कट कर रही है। तो मिलर इंडाइसिस कैसे बनाया जाएगा? सो अगर 2, 3 और 1 को देखो तो वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गए। तो अगर मैं नॉर्मल पैरेंथेसिस में x, y, z की जगह मैं लिख सकता हूँ 2a, 2b, c, और वो हमारा नॉर्मल पैरेंथेसिस हो गया। लेकिन 2a इज डिवाइड बाई a, 3b डिवाइड बाई b and c divided by c, so ultimately I may having a 2, 3 and 1. So that is ultimately it's a p, q and r, which is we have seen in the earlier slide. That is a vector component of a, b and c lattice unit vectors, that is a p, q and r respectively 2, 3 and 1. So now you are saying that 2a is divided by a, 3b is divided by b and c is divided by c. So ultimately you are getting the p, q and r, or you can say you are finding out a lattice vector component, you had to find it out, and that is 2, 3 and 1. और अगर शॉर्टली देखा जाए तो जो भी मल्टीप्लिकन कंपोनेंट है वो आपको सिर्फ लिखना है 2, 3 and 1,
What is the next you have to do? Next you have to do is something like this. I have repeated this particular slide, so it will be continuation of. Then determine the reciprocal of it. Reciprocal it माने उल्टा करना है, right? Numerator become denominator and denominator become numerator. So अगर 2 3 1 numerators है तो उसको denominators बना दो. So माने 1/2 हुआ, ये 1/3 हुआ और that is 1/1 हुआ. Find it out its LCM because मैं उसको फ्रैक्शनल में दिखाना नहीं चाहता हूँ. जनरली कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो फ्रैक्शनल में एक्सेप्टेबल और इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट एंड देयरफॉर द मिलर हैज़ गिवन द आइडिया कि उसका आप रेसिप्रोकल ले लो. रेसिप्रोकल करने के बाद यू हैव टू टेक द LCM ऑफ इट. तो LCM 2 3 1 का क्या आएगा? दैट वुड बी 6. सो यू अप्लाइड with multiply with the LCM. So your 2 3 1 coordinate system will converted into the 3 2 6. So here 3 2 6 is nothing but your HKL. So in general formation I can say that 1 over P, 1 over Q and 1 over R is nothing but your HKL. Remember that you are giving the final shape of HKL using with the multiplication of LCM. So 1 by 2, 1 by 3 and 1 by 1, that is given by 3 is to 2 is to 6. So that is your HKL, that is 3 to 6. So Miller indices may be defined as the reciprocal of an intercept made by a plane on a crystallographical axis when it reduces to the smallest number. I repeat, the Miller indices may be defined as the reciprocal of the intercept. माने जो आपका crystal geometry है which is making and intercept on your lattice geometry और उसका आप reciprocal ले रहे हो, that would be the reduce the smallest number. यानी वो साइज़ वो आपका यूनिट सेल है और वो यूनिट सेल की आप अंदर की तरह रेसिप्रोकल कर रहे हो. माने यू आर टेकिंग द इमेजिंग दैट यू आर लुकिंग द यूनिट सेल इज़ योर फाइनल आउटकम. सो जो भी आप रेसिप्रोकल रहे हो तो वो उसका व्यस्त हो गया तो उससे कम ही वैल्यू में आएगा. वैसे आप देखो तो 1/2 की वैल्यू आएगी, दैट वुड बी लेसर देन 1. सो द प्लेन ऑफ 1/2 विल बी डेफिनेटली विद इन योर यूनिट सेल. माने यूनिट सेल से तो ज़्यादा बड़ा प्लेन हो ही नहीं सकता. माने कोई भी यूनिट सेल का मैक्सिमम प्लेन क्या होगा? 1 1 1. सो उससे ज़्यादा अगर डिजिट आ रहे हैं, माने 1 से अगर जो भी ज़्यादा डिजिट आ रहा है, बेसिकली यू आर डूइंग अ रेसिप्रोकल. सो 1 डिवाइडेड बाय दैट नंबर, सो दैट इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन 1. सो एक से ज़्यादा नंबर वाला यूनिट will always giving you the planes within the unit cell and it is also a smaller plane compared to the 1 1 1 plane. So larger and largest plane is always suffered to said to be a 1 1 1 plane. Okay, so in continuation of this, let us highlight few things which is given in the book very nicely. What is the important features of a Miller indices crystals and their planes? All the parallel equidistant planes have a same Miller indices. माने अगर दो प्लेन पैरेलल जा रहे हैं तो उसके इंडाइसिस सेम होंगे. ओके, एंड दैट इज सेम माने नंबर वोंट बी सेम बट इट इज़ लाइक अ मल्टीप्लिकेंट ऑफ समथिंग. माने 1 1 1 उसको आप 2 2 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 1 1 एंड देन 2 2 2 एंड देन 1 1 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 3 3. दिस ऑल आर द parallel planes. फिर से पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1. All the parallel equidistant planes have the same Miller indices. Thus the Miller indices define a set of parallel planes. एक बात यहाँ पे शायद नहीं दिखाई दी गई है, लेकिन set of parallel planes माने 1 1 1. फिर अगर आप देखो लो तो नॉर्मल पैरेंथेसिस में 2 2 2 लिखो या तो नॉर्मल पैरेंथेसिस में 3 3 3 लिखो, तो ये सभी एक ही फैमिली के प्लेन्स गिने जाएंगे. दोज प्लेन्स आर वेरी मच पैरेलल टू ईच अदर. मेरे ख्याल से 2 स्लाइड की पहले की स्लाइड जो थी
यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि ये जो प्लेन है, फिर ये प्लेन है, फिर ये प्लेन है, ये सभी पैरेलल प्लेन से दिख रहे हैं. सो दिस इज सेड टू बी अ सेम प्लेन फैमिली. तो ए एक फैमिली हो गई, बी एक फैमिली हो गई, सी एक फैमिली हो गई, डी एक फैमिली हो गई. ठीक है. सो दैट इज गिवन बाय कर्ली ब्रैकेट. यहाँ पे मिस है लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड दैट. A plane parallel to one of the coordinate axes has an intercept of infinity. A plane parallel to one of the coordinate axes has an intercept of infinity. Okay, so अगर z plane में parallel है तो उसका intercept होगा ही नहीं. अगर होगा ही नहीं तो उसकी कोऑर्डिनेट ज़ीरो आएगी. अगर ज़ीरो आएगी तो जब आप उसकी कोऑर्डिनेट रेसिप्रोकल लोगे तो 1/0 हो गया. सो इट बिकम इनफाइनाइट, राइट. एंड इनफाइनाइट शोज इट इज़ द पैरेलल प्लेन. ओके. सो इफ़ द मिलर इंडाइसेस ऑफ टू प्लेन्स हैव द सेम रेशियो लाइक 8:4:4, उसको 2 से डिवाइड करो. सो 4:2:2, उसको 2 से डिवाइड करो तो 2:1:1. देन दिस ऑल प्लेन्स आर पैरेलल. इट इज़ सिमिलर टू द फर्स्ट वन. जो फर्स्ट में बात बोली गई है वही बात 3 में बोली गई है. एनीवे, द फोर्थ पॉइंट इज इफ HKL आर द मिलर इंडाइसेस ऑफ अ प्लेन देन द प्लेन कट्स द एक्सेस इनटू HKL इक्वल सेगमेंट रिस्पेक्टिवली. सो अगर HKL इंडाइसिस आपको दिया गया है तो आपका यूनिट सेल जो है वो उस तरह से प्रोपोर्शनेट में, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में वो आपका सेगमेंट बन रहा है. सो दैट यू हैव टू रिमेंबर. फिर से, इफ़ HKL आर द मिलर इंडाइसिस ऑफ अ प्लेन देन द प्लेन कट्स द एक्सेस इनटू HKL इक्वल सेगमेंट्स रिस्पेक्टिवली. माने HKL जितने 3 सेगमेंट HKL माने अगर ये जैसे कि यहाँ पे दिया है तो 8:4:4, तो आपको 8:4:4 है तो दैट प्लेन शुड कट योर एक्सिस इनटू 8:4 और 1 या तो 8:4:4 इक्वल सेगमेंट में डिवाइड होंगे. माने एक्स एक्सिस आपका 8 सेगमेंट में डिवाइड होगी, वाई एक्सिस आपकी 4 सेगमेंट में डिवाइड होगी और जेड एक्सिस भी आपकी 4 सेगमेंट में डिवाइड होगी. दैट इज़ व्हाट द मीन ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ HKL. माने जब मैं ड्रॉ करने बैठूंगा तो उस तरह से ड्रॉ करूंगा कि जैसे कि यूनिट सेल में 4 डिवाइड कर दिए, या तो एक्स एक्सिस को 8 भाग में डिवाइड कर दिया और जेड एक्सिस को भी 4 भाग में डिवाइड कर दिया. दैट वे वी विल टेक एन एग्जाम्पल एंड यू विल अंडरस्टैंड बेटर. सो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि अगर यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो यहाँ का कोऑर्डिनेट सिस्टम तो आ ही नहीं रहा है. एक्स को वो कट ही नहीं कर रहा है, जेड को ये कट ही नहीं कर रहा है. तो ये दोनों का कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या आएगा? इनफाइनाइट. और रेसिप्रोकल में हम क्या करेंगे? 1/इनफाइनाइट एक्स के लिए लिया. वाई को कट कर रहा है तो वाई इज़ 1 क्योंकि ये यूनिट सेल है और यूनिट सेल के लास्ट पोजीशन विल बी 1, सो दैट वुड बी 1. एंड जेड को भी कट नहीं कर रहा है सो इट इज़ पैरेलल, सो 1/इन्फिनिटी. रेसिप्रोकल मैंने ले लिया तो इट बिकम 0, 1 एंड 0 एंड हैंस माई और LCM इसका क्या आएगा? राइट, ये 1/0 बिकम डायरेक्टली 0, सो इट LCM 1 आएगा. और माई HKL कोऑर्डिनेट फॉर मिलर इंडेक्स बिकम 0, 1, 0. Again remember this is a normal parenthesis not separated by a comma. That means it is not a Cartesian coordinate system but it's a Miller coordinate system or it's a Miller indices. In general it is known as like that. Okay, so take one more the idea about this. A plane is perpendicular to the direction of 0, 1. तो अगर मेरे पास 0, 1, 0 प्लेन है, अगर मेरे पास 0, 1, 0 प्लेन है तो अगर मैं डायरेक्शन, यहाँ से मिसप्रिंट है याद रखना, डायरेक्शन शुड बी शोन बाय अ स्क्वायर ब्रैकेट. सो दिस शुड नॉट बी अ नॉर्मल वन बट इट शुड बी अ स्क्वायर ब्रैकेट. लेकिन यहाँ पे लिख दिया गया है डायरेक्शन, सो इट मे वर्क. सो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि ये ऑथर की मिस्टेक है, लेकिन टाइपोग्राफिकल मिस्टेक डेफिनेटली है. इट शुड बी बेटर टू हैविंग ऑलवेज स्क्वायर ब्रैकेट. ओके,
सो यहाँ पे एक और इनपुट दिया गया है, द प्लेन ऑफ मिलर इंडाइसिस प्लेन एंड दैट पर्टिकुलर डायरेक्शंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। माने जो डायरेक्शन आप दिखाना चाहते हो, तो अगर वही कोऑर्डिनेट का अगर प्लेन है तो दैट डायरेक्शन इज़ परपेंडिकुलरली पासिंग थ्रू द प्लेन्स। यहाँ पे देखो कि वाई एक्सिस है वो प्लेन में से निकल रही है, सो इट इज़ ज्योमेट्री इज़ प्लेन और ये वाई एक्सिस की ज्योमेट्री परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। सो वही बात बता रहे हैं कि 0 1 0 प्लेन इज़ परपेंडिकुलर टू दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो अगर 1 1 1 प्लेन है तो ये ट्राइंगुलर प्लेन होगा, y इज़ 1 तो यहाँ पे आएगा एक्सट्रीम पॉइंट पे, x यूनिट सेल के एक्सट्रीम पॉइंट पे आएगा और z भी 1 यहाँ पे आएंगे। तीनों को मैंने जोड़ा तो वो ट्राइंगुलर प्लेन। अगर यहाँ ट्राइंगुलर प्लेन है तो आप ऐसा सोचो कि एक रूम है, एक रूम का एक अपर कॉर्नर पॉइंट है वो z है और नीचे के दो जो बॉटम कॉर्नर पॉइंट है विथ रिस्पेक्ट टू योर ओरिजिन, तो वो बाकी के वो डायगोनली नीचे वाले फ्लोर को कनेक्ट करो और ऊपर वाले z को, तो एक ट्राइंगुलर प्लेन जनरेट होगा पूरे रूम में। और दैट वुड बी, ओरिजिन में से अगर एक कोड आप निकालो विच इज़ गोइंग टू द z direction at a 1 1 1 point, so that this direction is perpendicular to that particular plane. Okay, similarly over here you can think of x and y is 1 1 and it is parallel to z direction, so ये z को parallel plane है, तो z का कोऑर्डिनेट नहीं है तो उसका 1 अपॉन इनफाइनाइट आएगा, x is also 1, y is also 1, रेसिप्रोकल लिया सो 1 over 1 1 over 1 and 1 over infinity, and that's why अगर LCM निकाला मैंने तो वो 1 आ रहा है क्योंकि 1 over infinity become 0. So my Miller indice HKL become 1 1 0. It is not separated by comma, so it is a Miller indices. Direction again I am reminding you, it should be a square bracket and this coming code is showing that particular डायरेक्शन। यहाँ पे एरो होना चाहिए, वो भी शायद मिसप्रिंट है तो वो आपको याद रखना है। एनीवे जैसे कि यहाँ पे 1 1 1 में देखो एरो दिखाया है, ओके, सो इट शुड बी लाइक दिस। Okay, I have in the last slide I have given a few samples of Miller indices, so we will see in the lastly, because there would be a certain examples or in your exam कि अगर मैं आपको प्लेन मिलर प्लेन दूँ तो उस पे से आपको मिलर प्लेन आइडेंटिफाइड करना है, या तो मैं आपको पिक्चर दूँ तो पिक्चर पे से आपको मिलर इंडाइसिस आपको बताना है, मैं आपको डायरेक्शन दूँ तो आपको वो डायरेक्शन चूज़ करनी है। सो ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हो सकते हैं। ओके, सो फाइनली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एटम्स, अगर एटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन सोचा जाए तो कैसे होगा। तो अगर एक प्लेन है मेरे पास, लेट प्लेन माने 2 डायमेंशनल, रिमेंबर दैट, सो 0 1 0, सो दिस प्लेन इज जस्ट कटिंग द वाई एक्सिस, जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल वाई एक्सिस वाला पुराना ये वाला, तो ये 0 1 0 प्लेन है विच इज़ कटिंग द वाई एक्सिस, तो इसमें सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट है, तो आपका प्लेन का कोऑर्डिनेट हो गया 0 1 0। ओके, सो नाउ 0 1 0 is the plane. Let A is the lattice constant. Remember that we are just talking about just cubic crystal. So cubic crystal is the easiest one. So उसके लिए अगर हम डिस्कशन करेंगे तो हमारे दिमाग में आराम से वो बैठ पाएगा। So let A be the lattice constant in a millimeter. मान लो कि ये मिलीमीटर वाला आइडियली किस में होना चाहिए, ये सब एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए, बट जस्ट टू ईज एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन एटमिक प्लेन्स, तो एटमिक प्लेन्स में एटमिक का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है वही कुछ देखना है। माने एटमिक पैकिंग फ्रैक्शन अभी हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, सो सिमिलर टू दैट बट इट इज़ रिलेटेड टू अ जस्ट वन प्लेन, और एक प्लेन में एटम्स कितना है और बाकी का प्लेन का हिस्सा कितना है, दैट इज समथिंग व्हाट वी वांट टू फाइंड इट आउट। ओके, सो अब लेट A is a lattice constant in a millimeter and r is the radius of an atom that is also in a millimeter. So A square that means 1 square millimeter, and 1 square millimeter में कितने एटम हुए, तो ये पहला प्लेन देखो आप, ओके 1 0 1 0। अगर ध्यान से देखो तो लेट मी टेक यू बैक अगेन टू द पिक्चर, अगर यहाँ पे देखो तो ये 0 1 0, ये प्लेन कैसा होगा, स्क्वेयर होगा, क्यों, क्योंकि ये क्यूबिक सिस्टम का है, क्यूबिक सिस्टम का है, और क्यूबिक का वन ऑफ द फेस दैट शुड बी ऑल्सो क्यूब, क्योंकि ये भी ए है,
हाइट भी ए है, विड्थ भी ए है। ओके, सो यहाँ पे 1 लिखा है कि स्क्वेयर ए स्क्वेयर इज अ स्क्वेयर मिलीमीटर कंटेन्स 1 एटम। 1 एटम कैसे हुआ, तो ये आपका प्लेन हुआ, तो 1 मिलीमीटर इस तरफ हुआ और 1 मिलीमीटर वाई हुआ, 1 मिलीमीटर एक्स हुआ, 1 मिलीमीटर वाई हुआ, और चारों कोने पे एक एक एटम पड़ा है, राइट। सो अगर देखो वाइड पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, दैट इज रिफर्ड एज अ void, 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 the unoccupied space of a crystal, unoccupied space or the space of a unit cell which is not occupied by the atoms. It is more correct way to understand कि ऐसी एक जगह जहाँ पे एटम का कंट्रीब्यूशन नहीं है, the space which is not occupied by the atom in a unit space, in a unit cell or in a unit plane which is known as a void. तो 1 square mm, so 1 atom per square plane, plane माने a square, so 1 atom per square. 1 atom कैसे हुआ, this is 1/4 atom दिख रहा है शायद, ये अगर पूरा एटम अगर आप देखो 2 डायमेंशनल सेटअप है, याद रखना प्लेन की बात हो रही है तो वो 2 डायमेंशनल सेटअप होगा, माने सर्कल्स, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट अ स्फेरिकल शेप बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ सर्कल्स। सो चारों सर्कल चारों कोने पे हैं और चारों का 1/4 सर्कल 1/4 सर्कल 1/4 सर्कल 1/4 सर्कल, सो इट बिकम अ 1 सर्कल। सो 1 एटम पर प्लेन, सो ए स्क्वेयर। अगर यहाँ का रिलेशन देखो तो a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर है, सो 1/a स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/4r स्क्वेयर, करेक्ट। सो रिलेशन क्या हुआ, a स्क्वेयर इज इक्वल टू 4r स्क्वेयर, a स्क्वेयर इज इक्वल टू 4r स्क्वेयर, दैट इज द रिलेशन फॉर 101। लेट अस से 110 प्लेन की क्या हालत है, फिर से मैं वापस आपको प्रीवियस स्लाइड पे ले जाऊंगा और यहाँ पे देखो 110 प्लेन, अब ये प्लेन डायगोनल प्लेन है, कैन यू सी दिस, सो द एरिया ऑफ दिस प्लेन इज स्मॉलर देन द एरिया ऑफ दिस वन। अब यहाँ पे भी 4 कोने पे 4 ही एटम है, एंड देयरफॉर द एटॉमिक पॉपुलेशन इन द 110 प्लेन इज मच लेसर कंपेयर टू 010 प्लेन। यहाँ पे भी 4 एटम, लेकिन एटॉमिक एरिया is identical in both the case, लेकिन size of your plane are different and therefore atomic population per plane will be differ. So let's go again back to the calculation. So plane 100, remember that this is a diagonal planes, okay, and diagonal planes, so this is 110 plane and 110 plane, so the area of the plane, so 1 is a डायगोनल पार्ट है तो आपका 1 ऑफ द लेंथ ऑफ योर, फिर से मैं पुरानी स्लाइड पे ले जाऊं, सो दैट इज़ अगर ये प्लेन का एरिया मुझे फाइंड आउट करना है तो दिस इज़ योर ए बिकॉज इट्स अ क्यूबिक सिस्टम, सो दिस इज़ हाइट ऑफ द यूनिट सेल इज़ ए, लेकिन ये क्या होगा, इट्स अ फेस डायगोनल, ये फेस डायगोनल है तो ये भी ए है और ये भी ये ए है, तो इट्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो इट्स 2 स्क्वायर, उसका रूट निकालो तो √2a, सो x to y ज्वाइनिंग कॉर्ड दैट इज √2a। अगर √2a है तो अगर यहाँ पे देखो तो एरिया ऑफ द प्लेन क्या हुआ, हाइट इज a एंड लेंथ इज √2a, सो इट बिकम √2a स्क्वायर। So now in this plane चारों कोने पे एक एक एटम है, अगेन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एटम्स टू दिस पर्टिकुलर प्लेन वो कितना हुआ, 1 एटम हुआ, क्योंकि यहाँ पे 1/4 एटम, यहाँ पे 1/4 एटम, यहाँ पे 1/4 एटम और ये कोने पे 1/4 एटम। अगर दो ज्वाइनिंग कोड को मैं एडजॉइनिंग करूँ तो a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ r का रिलेशन निकल रहा है, क्योंकि ये तो √2a है, तो यहाँ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाइट में तो 2 एटम की एज टच हो रही है, सो a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ r। तो 1 एटम पर डायगोनल प्लेन एंड डायगोनल प्लेन का एरिया है √2a स्क्वायर, सो 1/√2a स्क्वायर। a की वैल्यू क्या हुआ, a की वैल्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ r,
सो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ आर करो तो क्या होगा, तो 1/√2 इंटू 1/4r²। तो अगर यहाँ पे सेट करो तो एटॉमिक पर स्क्वेयर mm इज 1/4√2 r². The last one is a 1-1-1 plane. So 1-1-1 plane, that is a triangular plane. Let me take you back to the previous slide, and this is a 1-1-1 plane. x यहाँ पे 1 हो रहा है, y यहाँ पे 1 हो रहा है, z यहाँ पे 1 हो रहा है, and therefore in case of a 1-1-1 plane it will be a 1-1-1 plane. So it's a equilateral triangle. अगर equilateral triangle है तो the each angle, that is a B and C, or the each vertex shows the angle that would be 60, right? And with this logic I can say that each one is a diagonal. Each one is a diagonal of a 3 faces, and therefore it would be a √2a, √2a, √2a. So each length of a triangle, that would be √2a, correct? Angle would be 60. So you need to find it out the area of this. Area कैसे find out होता है triangle का, that is 1/2 into base into normal. I repeat, 1/2 into base into normal. तो base कितना है आपका, a√2, 1/2. So 1/2 into a√2 multiply by normal. Normal अगर यहाँ मैं imaginary एक line draw करूँ तो this will cut the 60-degree angle into 2 part, that is a 30. तो cos of a√2 अगर आप ले लो तो that would be exactly the normal. So you applied the cos theta function over there on 30 angle, you can able to find it out the cos component of hypotenuse. So that is equal to your normal, and with this logic you can having the area of the plane that would be is equal to √3/2a². तो अगर √3 2/a² का अगर एरिया आपका निकल रहा है, माने ये ट्राइंगुलर का एरिया है, तो लेकिन यहाँ पे एटॉमिक कंट्रीब्यूशन कितना है, तो यहाँ अगर ध्यान से देखो तो दिस एंगल इज 60. तो 60 से अगर ये गिना जाए तो ये 6 6 36. तो सर्कल होने से यू रिक्वायर्ड अ 6 सच ट्राइंगल्स इन योर सर्कल्स. तो या तो केक, सो दिस अगर एक राउंड सर्कल की केक है उसमें अगर आप 6 ट्राइंगुलर 60-60 एंगल के आप करोगे तो इट वुड बी अ कंप्लीट केक के इक्वल सेगमेंट हो जाएंगे. सो दिस इज अ 60 माने दिस इज 1/6 पोर्शन and this remain is a 5/6 portion. So atom at a corner contributing to the plane, that is 1/6. Am I clear? I am repeating again. So the atom at the corner of this plane is contributing to this triangular plane, that is 1-1-1, is 1/6. So 1/6 plus 1/6 plus 1/6. So 1/6 multiplied by 3. So ultimately the atomic contribution to this particular plane is 1/2. Am I right? And therefore I am writing 1/2 atom per triangular plane whose area is √3/2a². So 1/2 divided by √3 2a². Now denominator of denominator will get cancelled, so ultimately 1/√3a², and that is a is replacing with the idea that when these circles are touching to each other, or rather you can still, it's a cubic system only, so you can assume that the two atoms are touching to the edge, and therefore a is equal to twice of r. Still you can use it because it's a cube, and therefore a will be written as a twice of r, so it become 4r². so 1/√3. so अगर आपके पास r है radius of an atom, you can find it out the atomic population on 1-1 plane is finding by this. Am I clear? I repeat, अगर मैं आपको वाइवा में या तो एग्जाम में ये पूछूं कि 1-1-1 प्लेन में एटमिक पॉपुलेशन कितना है, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम,
then you can having 1/√3 इंटू 1/4 आर स्क्वेयर। अगर मैं आपको एटम की रेडियस दे रहा हूँ तो आप आर की रेडियस, एटम की रेडियस यहाँ पे रखिए एंड यू आर गेटिंग द एटॉमिक पॉपुलेशन और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट वन। सिमिलरली अगर मैं आपको 110 प्लेन के लिए पूछ रहा हूँ तो आपको यूज़ करना है 1/4√2 आर स्क्वेयर। अगर मैं आपको 010 या तो 001 या तो 100 प्लेन के लिए पूछ रहा हूँ तो आपको 1/4 आर स्क्वेयर वाला इक्वेशन यूज़ करना है। आई होप विद दिस इट इज़ मोर क्लियर टू यू एंड लेट अस हैव अ मोर फन विद द मिलर इंडाइसेस। Don't focus on this line, unfortunately I am not able to remove it, so just look at on the pictures, and that is 100 plane, 100, that is only one is available, that means y and z is 0, so that means this plane should be parallel to the yz plane and it should cut the x-axis, so it having only one coordinate and especially it cutting to the edge of your unit cell, तो आपका मैक्सिमम यूनिट सेल का जो एज था वहाँ पे वो कट कर रहा है, तो दैट इज़ वाई द यूनिट इज़ 1। सो 100 प्लेन वो क्यूब का एक्सट्रीम फेस होगा। ओके, सिमिलरली अगर सोचूं कि 010 प्लेन कहाँ पे होगा, तो ये जो प्लेन है वो 010 होगा क्योंकि वो सिर्फ वाई एक्सिस को कट कर रहा है। सिमिलरली मैं अगर ये क्यूब का टॉप व्यू देख लूँ, टॉप वाला प्लेन, ये ऊपर वाला जो आप मैं यहाँ पे कर्सर घुमा रहा हूँ, सो दैट वुड बी 001 प्लेन होगा। ओके, नाउ 110 प्लेन, सो माने एक्स एक्सिस इज दिस वन, सो वो भी 1 हुआ, y भी 1 हुआ, z पैरेलल है, सो इट इज़ पैरेलल, सो दिस इज अ डायगोनल प्लेन। 111 प्लेन इज ट्राइंगुलर प्लेन। 1/2 माने अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 200 प्लेन, ओके, सो नाउ यू रिमेंबर दैट इट इज़ अ 200। तो मैंने जब इम्पोर्टेंस अबाउट द मिलर इंडाइसिस उसमें दूसरा पॉइंट लिखा था, फिर से मैं आपको बताऊं, ये वाला, सॉरी, व्हाट इज दिस, इफ HKL आर द मिलर इंडाइसिस ऑफ अ प्लेन देन प्लेन cuts the axis into HKL equal segment respectively। रिमेंबर दिस, HKL है वो इक्वल सेगमेंट में डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे देखिए, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है आपका 2, तो आपको जो एक्स एक्सिस को इक्वली 2 सेगमेंट में डिवाइड करना है, तो ये 1 ये 2, तो ऐसा एक कोऑर्डिनेट माने 2 विल बी हियर। रिमेंबर दैट, आपको ये शायद दिमाग में जनरली जनरेट इश्यू होगा कि 2 अंदर कैसे आया, क्योंकि जनरली कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या सोचते हैं कि जैसे ही एक्स एक्सिस की लेंथ बढ़ती है द कोऑर्डिनेट सिस्टम शुड इंक्रीजेस, बट रिमेंबर दैट मिलर इज द रेसिप्रोकल वंस आर देयर, माने आपको रेसिप्रोकेट करना है तो रेसिप्रोकल वाला यहाँ से अंदर आएगा। तो ये मोटिव ये था, मिलर हैज़ गिवन एन आइडिया बिकॉज इन द क्रिस्टलोग्राफी it is a replacement and the further periodical replacement of the fundamental blocks, और यूनिट सेल है वो पीरियोडिकली पूरी की पूरी क्रिस्टलाइन सिस्टम में डिस्पर्स है, पूरा का पूरा यूनिट ब्लॉक का पुनरावर्तन हो रहा है ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, ऑन जेड एक्सिस, यूनिट सेल आर पीरियोडिकली रिपीटेड। तो पूरा क्रिस्टल ज्योमेट्री स्टडी नहीं करना है, सिर्फ आप यूनिट सेल को स्टडी करो एंड इट वुड बी द common for entire system। so you are taking a reciprocal of it, so 2 अगर लिखा है तो आपको उसको x एक्सिस वाला जो सेगमेंट है आपका यूनिट सेल का उसको 2 हिस्से में डिवाइड करो, 2 इक्वल पार्ट। अगर यहाँ पे 3 लिखा है सो 3 सेगमेंट में डिवाइड करो और तीसरे सेगमेंट में आपका प्लेन आएगा, माने 300 विल बी मच डीपर और मच क्लोजर टू द ओरिजिन। अगर मैं लिखूँ कि 500 तो ये एक्सिस को आपको 5 में सेगमेंट में डिवाइड करना है और 1/5 पोर्शन पे आपको वो प्लेन ड्रॉ करना है। आई होप दिस विद इज क्लियर। यस, वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस इज नोन एज अ बार 00, बार 100। बार माने अल्टीमेटली इट्स अ नेगेटिव, सो नेगेटिव माने अगर बेसिकली इट्स अ क्रिस्टलोग्राफिकल एक्सिस,
इट्स अ क्रिस्टलोग्राफिकल ज्योमेट्री, माने पूरा का पूरा बिल्डिंग ब्लॉक का डिस्पर्समेंट इन द लेटिस ज्योमेट्री। सो अगर ये आपका ओरिजिन यहाँ पे ये था, तो अगर ये पीछे वाले ओरिजिन को मैं आगे ले आऊँ, सो ये 0 0 0 हो गए। यहाँ से आगे वाली एक्सिस माने यहाँ कहीं पे 1 होगा, ये यहाँ पे z इज़ 1 और यहाँ पे y इज़ 1। तो अगर ये डेप्थ वाला मैं देखूँ, ये लाइन सेगमेंट, सो दैट बिकम योर -1, सो ये हो गया -1, सो -1 इज़ दिस, दैट्स वाई इट्स शोन -1। y एंड z इज़ नॉट, सो ये y और z को पैरेलल है, सो ये जो ग्रीन है वो पीछे वाला प्लेन। अगर ओरिजिन अगर आप यहाँ पे जनरेट कर रहे हो तो ये आपका 1 0 0 होगा रहा, ठीक है। लेकिन अगर ओरिजिन को मैंने पीछे से आगे शिफ्ट कर दिया, सो इट बिकम अ बार 1 0 0। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे कि 1 बार 1 0। तो बार 1 तो मैंने क्या किया है, ओरिजिन को यहाँ पे शिफ्ट किया, देखिए दिस ओरिजिन इज शिफ्टेड पॉइंट हियर, so x1 is a 1 without bar, so x is maximum point, so this coordinate is 1, okay। z तो एब्सेंट है, तो z में पैरेलल, बिकॉज इट इज़ पैरेलल टू द z। और y अगर ये 0 है तो इस तरफ +1 हुआ, तो इस तरफ होगा -1, सो -1, सो यहाँ पे -1, सो दिस डायगोनल प्लेन इट इज शोन बाय 1 बार 1 0, ओके। सो दिस इज़, अगर ट्राइंगुलर 1 1 1 प्लेन है, सो ये 1 1 1 प्लेन हुआ, तो ये कितना होगा, दिस इज़ 3 पार्ट ऑफ दिस, सो ए का 3 पार्ट किया, ए का 2 पार्ट किया और z को 1, तो ये कोऑर्डिनेट का अगर मैं मिलर प्लेन लिखने के लिए अगर आपको एग्ज़ाम में बोलूँ तो क्या होगा, 3 2 1, सो ये प्लेन हो जाएगा 3 2 1 प्लेन। यहाँ पे देखो दो इक्वल पार्ट हुए, a/2, ठीक है, y को पैरेलल है, z को पैरेलल है, सो ये हो जाएगा 2 0 0, सो दिस इज दिस एंड दिस प्लेन्स आर सेम, ओके। दिस इज a0 0 प्लेन, सो दिस एंड दिस प्लेन आर सेम, सो इट्स 1 1 1 1 0 0 प्लेन। ये प्लेन और ये प्लेन 1 1 0, ये भी 1, y भी 1, दोनों पे a इसलिए दिखाया है बिकॉज इट्स अ क्यूबिक सिस्टम, ओके। आई होप इट्स नेगेटिव बार 1 0 0, तो यहाँ पे देखिए ओरिजिन मैंने यहाँ पे ही रखा है, तो बार 1 कहाँ पे आएगा, तो लेफ्ट साइड पे यहाँ कहीं पे प्लेन पड़ा होगा। सो बेस्ट वे इज़ टू रिप्रेजेंट ऑलवेज यू शिफ्ट योर ओरिजिन। तो अगर मुझे यहाँ पे बार 1 0 0 प्लेन दिखाना है, तो ये ओरिजिन को मैं शिफ्ट कर दूंगा यहाँ पे, तो ये जो प्लेन है दैट बिकम माई बार 1 1, ठीक है। हवा में बताने की जगह ऑलवेज shift your origin on a cubic system and you can find it out. With this I end up the chapter here, and this would be our syllabus. So in the book I can say that topic number 20 is our last topic, rather 21, पेज नंबर 120 तक आपका सिलेबस रहेगा। नो डाउट द प्रीवियस CIA1 was only up to chemical bonding, so chemical bonding will be not part of the CIA2 syllabus, but CIA2 का syllabus होगा CIA1 के बाद के लेक्चर से till today's lecture. I hope you will definitely do your best in your exam. You are learning online exercises. We give the exam very nicely. All the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.